what does Republic mean to us? So basically, when we think about Republic Day, we got the independence on 15th of August 1947. As we know, it was a mixed feeling for the Indians, fortunate, also unfortunate, because we didn't got the independence for the united country. We were divided into two parts, India and Pakistan. When British left India, they were having one international pressure on that the country which they are living should not be in the chaos. There has to be a system, that system should work. Hello everyone, and welcome back to the 6th episode of Change Equals Evolve. I am Yash Raut, your host, and today we have Ajay Patil sir with us. He is one of the most well-read professors that I ever known. Hi sir, how are you? Hi, fine. First of all, Happy Republic Day sir. Same to you. सर हम ये जानते हैं कि लाइक रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे, इट हैज़ अ नेशनल सिग्निफिकेंस. सब लोग हॉलीडे मनाते हैं, फ्लैग होइस्ट होता है, कहीं पर परेड होती है, बट व्यूअर्स या फिर जो नॉर्मल जनता है उनको एग्जैक्टली ये पता नहीं है, या फिर दे डोंट एग्जैक्टली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट रिपब्लिक मीन्स इन द रिपब्लिक डे. व्हाट डज रिपब्लिक मीन टू अस? Okay. So basically, when we think about today's day, means I would like to tell, when we Indians look at our national festivals, we are having two festivals. Okay. 15th August, 26th January. So there might be a question in the minds of the people that if we are celebrating 15th August, then what is the need of 26th January? Right. But both the days are different. In our schools, we were told that one is the Independence Day of India, another is the Republic Day. But very correctly you mentioned that maximum of us don't know about the meaning or why these terminologies are there. Okay. So we can start from that only. So basically, when we think about Republic Day, we got the independence on 15th of August 1947. As we know, it was a mixed feeling for the Indians, fortunate, also unfortunate, because we didn't got the independence for the united country. We were divided into two parts, India and Pakistan. And we got independence, but thereafter, when British left India, they were having one international pressure on that the country which they are living should not be in the chaos. There has to be a system, that system should work. Okay. And in any system, when we think about any country, any powerful person or any powerful state, there has to be something which we talk about how they are going to use their power. Okay. And that was needed for this huge country. So when British left, there was a question in their mind that how the Indians are going to manage their freedom, how they will use this power. And at that time there was a notion that these Indians will again fight amongst each other and they will disappear or they will get destroyed. Right. But at that time, it was the Constituent Assembly of India. Some of the political leaders, they came together. They took the deliberate efforts to make the constitution for our country. Okay. And what exactly constitution, Samvidhan is? It is just the set of certain rules and regulation which tells how we are going to function, how we will look after ourselves, how we will take care of our citizens. And that document was created on 26th of November 1949. Okay. And then on 26 January 1950, we implemented that document. So till that, we were an independent country. In international relation, there were two words. One is country and another is the state. Okay. So that was the time when we are using the word state for any legal body, any country. So state is something which is governed by the law. Okay. There is some document, some pretension about using their power. So that document came in the effect on 26 January and we became the Republic. Before that, people were having that notion, the British Emperor will be replaced by someone who is Indian, maybe as a king, maybe Shehenshah, maybe Badshah, or in Indian terminology, Maharaja. Okay. But when we call it as a republic, it is the government of the people, by the people, for the people, or for the citizen of India. So that came from this day. So it is republic, the government of the public, the representation of the public for governing the country. So that is republic. So like you mentioned that we got independence from Britishers. अभी हम एक स्टेप बैक चलेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कब आए, मतलब when did they enter India and how did they colonize India? So for that हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. We can go up to 16th century. Means जब हमारे यहाँ पे we were in our country, in our state we were
having the people like Mughals, pre-Mughals, they were fighting amongst each other. Okay. That was the time when Britishers entered in India with not the intention to control this country. But initially when they came, उनका intention था कि they want to do the trade. व्यापार करने के लिए they came in India in the year 1600. Okay. First of all, they started from Surat, Gujarat, and from there they started establishing their factories. Now we are using the word factory in the different terms, but at that time their factories were just like as the godowns. Okay. That was the time when Europe was at the threshold of the industrial revolution. The production of the things was started there. They were looking for new markets, and one of the huge market was there in India. Okay. They entered, and initial days means when we look at Britishers era in India, we can divide them into 2-3 parts. Part one, they entered and they penetrated the market. Okay. Thereafter started struggle with themselves only. There were so many Europeans. Means it will be surprise, but Britishers were not the first who governed this country or who came here first time. Okay. Before Britishers, the Portuguese were there who came in India. And it was just 102 years ago. 102 साल पहले वो आए थे 1498. Portuguese came in India and they were the one जिन्होंने सबसे पहले किसी इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किया. That was Goa. Okay. Goa. और ब्रिटिश जाने के बाद उन्होंने इंडिया छोड़ा. That is 1963. So they were the one जिन्होंने ज़्यादा समय तक इंडिया पे कंट्रोल किया. बट हमें ब्रिटिश पता है because it is a volume game. Maximum area was covered by them. Okay. तो शुरुआत में they had struggle with Portuguese, Dutch, French, and then one time came, then they survived amongst themselves and they started fighting against the Indian kings. Okay. Means in that lot of time people ask कि what was the point because of which Britishers could succeed in India and they could have their control on the Indian territory. So for that there was an event 1756. Okay. In 1756, British, the way they came at Surat, from Surat, they came to Konkan, Rajapur, Ratnagiri, then Madras. In Madras, they established their one fort called as Fort St. George. Okay. And then they came to region like Calcutta. And the Calcutta which today we are looking at is the gift given by Britishers, we can say. Because initially Calcutta was not there. There were 2-3 small villages, and when British came there, they captured one village, and then they made the city of Calcutta. There they founded one fort. They built one fort. It was Fort Williams. Okay. By the at the name of one of their prince. King Williams के नाम से उन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम था Fort Williams. And from there they started working in India. जो वेस्ट बंगाल में आया दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी ना. Yes, yes. मद्रास वगैरह होकर के जब कोलकाता आए तो फिर उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया और दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. यस मतलब थोड़ा सा अगर हम देखें ना हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई दे कुड सक्सीड इन इंडिया. ओके. तो दो टुडे वी आर ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी वी आर डिस्कसिंग दिस, बट यस सर्टन थिंग्स आर देयर व्हिच वी शुड accept from them also. Okay. That the way, the sense of belonging they were having, the belonging for their British crown they were having, that has to be saluted. Okay. Because it was like that individual tradesmen, merchants came in India on the name of British. They started establishing their factories. But when a rule was passed by British Queen, that is called as British Charter. Okay. When that charter rule was passed, and she said कि all the people who are working in India as a merchant, they will come under one company, and that company will be East India Company. So at that time there were 3 East India companies in India: British East India Company, Portuguese East India Company, and French East India Company. But in that entire struggle, all the companies were get aside, and only British East India Company could survive. Okay. So we know today only one East India Company, that is British. Even we are not using the prefix British before it. Right. And then all these establishment came under the British crown, and they started functioning from the Calcutta only for trade. But Achha. at that time there was an event. There was Rokar Nawab of the Bengal. Name of the person was Siraj-ud-Dawla. Okay. And he didn't like that Britishers are coming here, they are earning money, but they are not paying me the taxes. Okay. Means this, I am telling this in a very layman's language so that everyone can understand. Right. Because they were using our resources, they were using our land, our coast,
and they were earning money, but it is the objective of the company. They were there to make the profit. So they started doing that. At that time, Siraj-ud-Dawla came and he asked for the greater taxes. Okay. There was a dispute between them, and at that time there was French East India Company also. So he ordered them that they cannot keep the arsenals, weapons नहीं रख सकते. Otherwise उन्होंने क्या किया, कंपनी बनाई, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मटेरियल उन्होंने वहाँ पे तोफ राखे खड़ा करना शुरू किया. सो व्हेन द वेपन्स केम, देन इट वाज द अलार्मिंग सिचुएशन. तो Siraj-ud-Dawla said कि this will not happen in my land. So he asked them to take out those. French listened to them, Britishers ने नहीं किया, and there was a battle. Unfortunately today so many Indians don't know about that great battle which was fought by Siraj-ud-Dawla. Okay. The Fort William was destroyed. It was captured by Siraj-ud-Dawla, and there is a famous terminology called as Black Hole Tragedy. Okay. There was one small room, one very small room, and in that was just basically called as the prison, or it was that prison where 146 British soldiers were captured by Siraj-ud-Dawla on 28th of June 1756, and next day morning 123 amongst them were died. Then Britishers thought कि this is something very dangerous and we have to take care of this person, Siraj-ud-Dawla. They started very systematically. They used the traitors in the kingdom of Siraj-ud-Dawla, Okay. and they got one person called Mir Zafar. Right. One entire year they took efforts, and on 23rd of June there was the first battle. 23rd of June 1757, after 1 year 3 days. That is called as the Battle of Plassey. Okay. In which Mir Zafar was the main general of Siraj-ud-Dawla. The war was started, and at the 11th hour he denied to fight. So without firing a single bullet or without spending a single blood drop, British won. Right. खून की एक बूंद बिना वो जीत गए, and Siraj-ud-Dawla was thrown away. Mir Qasim became the next king, and that was the point from where they started establishing their political control on Indian territory. Mir Qasim जब आए, so he was the first puppet ruler, if we can say. Yes, Mir Jafar. Mir Jafar, He was sorry. Mir Jafar So he was the first puppet ruler from East India Company. from East India Company. Okay. Company was having the problem. एक तो there was the language issue. हाँ. Then now the company came in a very systematic way. If they could replace Siraj-ud-Dawla, and if they would sit on the throne, अगर वो सिंहासन पे बैठ जाते तो Indians would not like that. So they kept one Indian over there, and through him they wanted to do their work. They wanted to take out their interest. And what they got the one document is famous document is there called as Grant of Diwani Charter. They got the zamindari rights. Means Indian farmers will do the farming. They will do everything, but they have to pay to the Britishers, because now Britishers became the owner of that particular chunk of land. जितना बंगाल था, Bengal, part of Odisha and part of Bihar, it came under the British control after this battle of Plassey. Subsequently, Mir Jafar didn't like that, so he was replaced with Mir Qasim. Okay. And a movement came, because no one will like that. Right. कि you are interfering in my area of jurisdiction. There was that overlap of interest, and Mir Qasim also left. He escaped from there. He went to the Mughal Badshah. At that time, the position of Mughals in India was very weak, and Marathas were very powerful. Right. So this Mir Qasim went to Shuja-ud-Dawla, Okay. the king of the Awadh, Nawab of the Awadh, and उस वक्त का जो मुगल बादशाह था, name of the person was Shah Alam. So Shah Alam, Shuja-ud-Dawla, Mir Qasim, they again fought against the Britishers, and this time, unfortunately, Indians lost, and the entire region up to Delhi, Uttar Pradesh, Ayodhya, Awadh, came under the British control, and they started expanding. अच्छा, तो वो बैटल के बाद पूरा लाइक नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेक्शन है अपना, वो पूरा ब्रिटिशर्स के पास चला गया. यस, मतलब अप टू दिल्ली का मुगल बादशाह, एक शहनशाह हिंदुस्तान डिफीट होता है, मतलब एंटायर इंडिया इज डिफीटेड. Right. So half of the India went with the Britishers, but in western part of India, Marathas were powerful at that time. Right. So Marathas were having their different flank. They were working by their own, and
Then a systematic efforts were again taken by Britishers when they started putting the governor generals in India. Okay. Means this was the time when they captured the things, but they dedicated everything to the British Queen or British Acha. Crown. And British Crown ordered them, ki yes, now for managing all these things, we required some centralized authority. They came with the governor general system. Then certain governor generals came in India, and the second governor general who came, basically he was a loser. That was the time in the world America was fighting against the Britishers. Okay, right. American War of Independence, Americans won the war. Britishers were thrown away from the America, and the defeated general of Britishers, Lord Cornwallis, he was posted in India. Okay. That loser governor general, he came in India, and he started governing Indian territory. Acha. At that time, he decided certain policies. Mm-hmm. By that policies, then he entered into the fight against the king of Karnataka, Mysore, Tipu Sultan, Hyder Ali. Then Tipu Sultan was defeated in 1799. 1803, Marathas were defeated in the second battle of Anglo-Maratha War. Okay. And 1818, they took this many years, means from 1756 to 1818. Okay. Nearly about 70-80 years they took to defeat all the Indian kings. And then only one kingdom was remaining, that was Punjab. Okay. So that this was actually demonstration by them कि we can defeat the Shahenshah Hindustan. And we were scattered into very small kingdoms. Right. So these small kingdoms, when they saw the Shahenshah Hindustan got defeated, Marathas got defeated, Shuja Uddaula, Siraj Uddaula got defeated. So they surrendered. And in that, one British governor came in India, I think Lord Wellesley. And that Wellesley came with the policy of subsidiary alliances. That policy was like that, you don't have your own armed forces, as our armed forces are powerful, that is British Army. Right. And that British Army was also made up of the Indians only. Means it is very unfortunate that it was the Indians who were fighting against some Indian kings by wearing the uniform of British East India Company. Okay. So only we were fighting against our own kings, but they were giving us the salary. And those soldiers, then they started keeping in the Indian court as a British forces, and that policy was basically called as subsidiary alliances, whether Indian king was paying for them. Okay. बट एज इंडियन हम तो एकदम ऐसे पक्के होते हैं जिसका नमक खाएंगे उसके साथ बेईमानी नहीं करेंगे. Right. तो अवर सैलरी वॉज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, सो अवर सोल्जर्स वर थिंकिंग कि नहीं, ब्रिटिश माई बाप का हमने सुनना है. अच्छा. दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पैट्रियोटिज्म और एनीथिंग, और दे डिडंट अंडरस्टूड दैट इफेक्ट ऑल्सो. वो इफेक्ट समझने में भी और 30 साल गए, और 1857 में हमें वो दिखने लगा. अच्छा. जब बहुत बार कहा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस या भारतीय स्वाधीनता की पहली जंग, जिसको स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं, Okay. वो जो हुई थी, तो वो समझने के लिए भी और 30 साल जाने लगे. तब तक हमें वो समझा ही नहीं था. अच्छा. सो फिर और 30 साल तक कोई रिवोल्ट वगैरह ज़्यादा हुए नहीं. हाँ, मतलब रिवोल्ट हुए थे. Okay. बट मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ हमेशा कि 1857 वॉज नॉट द रिवोल्ट. वो बगावत नहीं थी. जब हम उसको बगावत कहते हैं तो बगावत कहने के बाद हम उसका स्वाधीनता संग्राम से उसको हम दूर लेके जाते हैं, क्योंकि बगावत वो होती है जो मैं अपने ओनर्स के, अपने मास्टर्स के खिलाफ करूँगा. Okay. वैसा हुआ था इंडिया में 1836 में. वैसे हुआ कि कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश कमांडर्स के खिलाफ बगावत की, एंड दैट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जनरल्स. बट 1857 में जो हुआ उसको हमें बड़े तौर पे देखना चाहिए, नॉट एज अ बगावत, बट इट वाज द स्वाधीनता संग्राम. वो हमारे, इसलिए सावरकर भी ऐसा कहते हैं कि इट वाज द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, व्हेन नॉट ओनली द फोर्सेस बट इन द सोसाइटी देयर वर कॉमन मैन, देयर वर आदिवासीज. Right. मीन्स दिस आदिवासीज सडनली व्हेन ब्रिटिश केम, सदियों से जो लोगों का जंगल पे अधिकार था, somebody went in the jungle and started saying you cannot cut the wood, you cannot take these resources because now this country is ours. So it was affecting on those Adivasis. Some farmers were there, they were growing some anaj, but suddenly Britishers came and they started saying that no, in Europe we are having the indigo plants, indigo companies, and you have to grow the indigo. Indigo जो कपड़ों को लगाते हैं नील.
सो उसके लिए तो बहुत बड़ा एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ था अच्छा। हमारे देश में. तो इट फार्मर्स गॉट अफेक्टेड, आदिवासीज गॉट अफेक्टेड. एट दैट टाइम देयर वाज वन गवर्नर जनरल डलहौजी. राइट. ही केम विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. मतलब जो इंडियन किंग्स थे, जो इंडियन किंग्स थे, उनके संस्थानों को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में करके अपना किंगडम बढ़ाना शुरू किया. हाँ हाँ. क्योंकि हमने देखा था कि जो शुरुआत में छोटे छोटे किंग्स थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया एंड दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट, ओके. उन लोगों को भी अभी ऑन सर्टन नेम्स, मीन्स फॉर एग्जांपल देयर वाज अवध. इन अवध दे टूक ऑन द नेम ऑफ इल गवर्नेंस, कि किंग हिमसेल्फ इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द पीपल, सो वी आर गोइंग टू टेक केयर, एंड दे कैप्चर दैट. ओके. Certain other kingdoms like झांसी की रानी, we know her famous statement, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी. So that was also like that when those kings जिनको खुद के बेटे या बेटियां नहीं थे, जिन्होंने किसी को अडॉप्ट किया था फ्रॉम द रॉयल फैमिली, ब्रिटिशर्स ने बोलना शुरू किया कि यू कैन नॉट गिव देम द राइट ऑफ गवर्निंग. Okay. सो वो आपके क्योंकि लीगल हेयर्स नहीं है, वी विल नॉट गिव यू पेंशन, एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कैप्चरिंग दोज किंगडम्स. सो इट वॉज वेरी सिस्टमेटिक मूव. बट जब ये हुआ तो उनको भी लगने लगा कि इट इज अगेंस्ट अस. द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसमें सब इंडियंस थे, देयर वर 3-4 पार्ट्स ऑफ इट: बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, एंड द लेटेस्ट वॉज द पंजाब फ्रंटियर फोर्स. हाँ हाँ. ये लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स वर विनिंग, ओके. बट देयर ऑफिसर्स वर यूरोपियंस. देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स देम. दे आर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड. एंड देन एक छोटी सी घटना घटती है कि एक बंदूक आती है जिसमें दे आर यूजिंग द कार्ट्रिजेस, जिसके ऊपर ऐसा कहा जाता है हाँ हाँ. कि दे वर यूजिंग द सुअर, और गाय के चर्बी का इस्तेमाल होता था जो दांत से तोड़ना था, एंड दैट वाज स्पॉइलिंग देयर रिलीजन. अच्छा. मीन्स पिग इज टैबू इन द इस्लाम, एंड गाय और काउ इज वेरी sacred in Hinduism. राइट. So both of them got united and they started questioning their British commanders. So it was not only one. It was the soldiers, it was the kings, it was the farmers, Adivasis, normal citizens. Okay. Even before that, they started coming with new education kind of policy. Westernization of the education was there. Right. Sati system was stopped. Even apart from that, so many other things were there which were against the Indian culture. So everyone thought that ki now the interference is at the peak and we have to stop it. अच्छा. So these soldiers got support from the normal Indians. And that is why it is first war of India's independence. ओके. Otherwise बगावत तो उसके पहले भी हुई थी. अच्छा. ओके. और फिर जब 1857 का मंगल पांडे का ये वाला पार्ट हुआ, देन इसके बाद द अंटिल द नेक्स्ट मोमेंट, जब नेक्स्ट रिवोल्ट या फिर नेक्स्ट मोमेंट हुआ, फिर उस टाइम तक जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स है, फिर वो उनको जागरूकता हो गई थी, और वर दे अवेयर दैट नाउ वी हैव द सपोर्ट ऑफ द नॉर्मल कॉमन पीपल, सो वी कैन नाउ रिटेलिएट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. हाँ, ऐसा होने लगा था. मतलब जैसे उस वक्त के हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, या पॉलिटिकल से भी ज़्यादा द पॉलिटिकल लीडर्स इमर्ज थ्रू द सोशल लीडर्स और सोशल मूवमेंट्स. जब हम बात करते हैं ना 1810, 1815, हाँ हाँ. then the people like Raja Ram Mohan Roy, Dwarkanath Tagore, the father of Rabindranath Tagore, then so many people started working. Then Swami Dayananda Saraswati was there. At certain part, then Swami Vivekananda came. In Maharashtra, Mahatma Jyotiba Phule was there. Okay. Mahadev Govinda Ranade, he was a justice. So many people were there. They started working for the social reforms. But while doing those social reforms, everything was came and stopped at a point which was British policies. So Achha. then everyone started realizing that it is not only we who can take the efforts for social reforms, but somewhere now there has to be change in the political policies of the Britishers. And British also understood that. So what they did, up to 1857, the government or the rule was done by the Governor General. And it was the East India Company which was controlling India. Okay. So it can be say कि एक एजेंसी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश क्वीन की हाँ. जो इंडिया को गवर्न कर रही थी. राइट. लोगों ने बगावत की, या लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, सो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ अवर ओन क्राउन. और फिर क्वीन ने ऐसे कहा कि अब तक मैंने किसी को काम दिया था आपको देखने का, वो काम अच्छा नहीं हुआ, नाउ आई विल लुक एट यू. अच्छा. और फिर इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. अच्छा. एंड बट
by my point of view, it is just the little bit arrangement. कि they will just replace that Governor General of India with the Viceroy. Okay. The officer who came here now, they started calling him as the Viceroy. He was from the personal court of the Queen. वहाँ से आता था और डायरेक्ट क्वीन को रिपोर्ट करता था. Right. बस इट वॉज देयर. अदरवाइज द सिस्टम, द आर्मी, द मैकेनिज्म वॉज सेम जो पहले था. तो दे स्टार्टेड वर्किंग और इसी में उनको लगने लगा कि समथिंग मे हैपन इन द फ्यूचर. सो दे केम विद दे कैच होल्ड ऑल दीज रीडर्स. देयर वॉज वन रीडर कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. Right. So Surendranath Banerjee was there. They started working against British policies. Initially there were small policies like there was the Vernacular Press Act. मतलब हमारे देश में हम बस इंग्लिश न्यूज़पेपर चला सकते हैं, भले ही लोगों को समझ में आए या ना आए, बट ब्रिटिशर्स को समझ में आना चाहिए. तो जितनी भी रीजनल लैंग्वेज थी, देयर में भी मराठी, गुजराती, बंगाली और मधुबनी, एनी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर थे उसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया, उसको बंद कर दिया. ओके. तो दैट वाज वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट. और उसके खिलाफ पहली बार कोई तो पॉलिटिकल ये सब लीडर, सोशल लीडर इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके खिलाफ काम किया अगेंस्ट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड दे गॉट सक्सीड. ब्रिटिशर्स को उस कायदे को वापस लेना पड़ा और वापस सब जो रीजनल न्यूज़पेपर्स थे वो शुरू हुए. अच्छा. दैट वाज द वे हाउ लोकमान्य तिलक स्टार्टेड केसरी. So Kesari was in Marathi and Maratha was in English. So there were so many newspapers like that. They again started. Okay. So that was first success, and then Britishers understood that now this energy has to channelize. So they came with one policy. There one retired ICS officer was there today, to whom we call it as the IAS, Indian Administrative Services. At that time, Britishers had used the name ICS, Indian Civil Services. Okay. So there was one retired Indian Civil Services officer, A.O. Hume. So under him, they gathered all these political leaders in 1885. Okay. And one organization was established called as Indian National Congress. Okay. This Indian National Congress is was the organization which was there to convey the Indian leaders' opinion or citizens' opinion to the British Crown through the Viceroy. So they gave a constitutional way to express the Indians about their dissatisfaction, so that the events like 1857 may not happen in the future. Okay. So that was again a systematic move to give the outlet, Okay. to avoid the future sabotage kind of thing. And फिर इसके बाद like now you said that Indian National Congress was established. So फिर उसके बाद जब हम 19s में जाते तो देन जब जो कुछ रिवोल्ट्स चालू होने लग गए, फिर उसके अंदर द मेजर इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू महात्मा गांधी, भगत सिंह एंड ऑल दोज. सो फिर उनका क्या क्या रेफरेंस पॉइंट्स है? अच्छा, उसके बारे में जब देखते हैं तो ये एक्चुअली कैसा है ना, आज जब हम इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद इस चीज़ों की तरफ देखते हैं, अच्छा, तो हमें थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है. उस वक्त शायद समझ में नहीं आई होगी. देयर वॉज सम रिलेशन बिटवीन देम जो तब समझ में नहीं आया होगा, बट वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होते गई. ओके. जब ये सब लीडर्स आए, इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर भी देयर वर सर्टन ग्रुप्स जिसको जनरली हम कहते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे थे जिनका कहना था कि ब्रिटिशर्स आर डूइंग जस्टिस विद अस, लेकिन कुछ जगह पे उनकी गलती होती है, मे बी ह्यूमन एरर्स. तो टू रिमूव दोज ह्यूमन एरर्स वी हैव टू हेल्प देम, वी हैव टू कन्विंस देम, वी हैव टू कन्वे देम दैट व्हाट मिस्टेक दे आर डूइंग. सो दे वर थिंकिंग अबाउट गुड गवर्नेंस. उनका कहना था कि हमें पे राज्य करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे वर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जब हम स्कैटर्ड थे उससे तो नाउ वी आर यूनाइटेड. राइट. मीन्स एट दैट टाइम also entire India was not under control of Britishers. We were having certain presidencies. There was Central Presidency, Madras Presidency, Bombay Presidency, then Northwestern Frontier Presidency. Okay. अलग अलग भाग थे, and above all of them there was the Viceroy. So Viceroy उनके ऊपर बैठ के काम कर रहा था, and उनका ऐसा कहना था कि because of this at least हम सब एक साथ तो आए. राइट. और इस तरह से उनका कहना था कि देयर शुड बी गुड गवर्नेंस. ब्रिटिशर्स ही करेंगे हम पे राज, बट अच्छे से करें. हाँ. And another group was there which was saying no. They came here, ठीक है, उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिला. The people like दादा भाई नौरोजी and others. He came with the theory of drain of wealth. He was the first Indian जिन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, भले ही उन्होंने हमें अलग अलग सिस्टम्स दी होंगी, लेकिन यहाँ से भर भर के पैसा लेके गए. दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ. यहाँ से पैसा पानी की तरह बहते हुए यूरोप तक पहुँचता था.
अच्छा तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था दादा भाई नौरोजी ने. एंड उनके जैसे कुछ लोग थे, उनसे मोटिवेटेड थे, जिनको लगता था कि नाउ ब्रिटिश विल नॉट डू द गवर्नेंस, हमारे हाथ में हमारा गवर्नमेंट आना चाहिए. सो इट वॉज दी, देयर वर टू ग्रुप्स, गुड गवर्नेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस. ओके स्वराज्य और सुराज्य. ओके सू में तो सुराज्य, इट वॉज द गुड गवर्नेंस बाय एनीवन, एंड सर्टन ग्रुप वॉज थिंकिंग वी वांट अवर ओन गवर्नमेंट. अच्छा सो दैट ग्रुप वॉज देयर, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं. ओके ये एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट 1905 तक साथ में थे. बट 1905 में एक वापस वाइसरॉय आते हैं, एंड लॉर्ड कर्जन, ओके एंड ही डिवाइडेड द इंडिया इनटू अगेन टू पार्ट्स, इंडिया एंड बंगाल. मतलब Okay. आज के हिसाब से टुडेज वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया, हाँ हाँ बांग्लादेश एंड म्यांमार, ओके that was one part, and another part was the rest of India. अच्छा. So he divided the India into two parts, and that again affected on the life of the people. मतलब लोगों की ऐसा था कि आज भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि when we look at their agricultural production, राइट तो jute is produced in India, Right. but factories were there in the Bangladesh ओके and vice versa. हाँ हाँ तो उस वजह से लोगों को लगने लगा कि अरे अगर डिवीजन हो गया, यहाँ से चीज़ वहाँ पे जाएगी, तो वी हैव टू पे द टैक्सेस. ओके देन सदियों से हम साथ में है, अचानक से कोई आया, एक लाइन ड्रॉ करके बोलता है कि ये आपका देश और ये उनका देश, राइट नहीं चलेगा. एंड अ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन बंगाल. नेम ऑफ द मूवमेंट वॉज वंग भंग मूवमेंट. अच्छा सो इट वॉज वंग, वंग मतलब बंगाल, भंग मीन्स ब्रेक. तो वंग भंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन बंगाल, and in which the moderate leaders of Indian National Congress emerged like anything. There were three leaders from Maharashtra. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was there. Okay. From Bengal, Bipin Chandra Pal, and from Punjab, Lala Lajpat Rai. अच्छा. So this is the trident, and they started working against the Britishers. They become very popular. Vande Mataram became more sacred than the Vedas. हाँ हाँ Means there is the song in the regional language in Maharashtra. They call it as a Veda mantra Huni Amma Vande Vande Mataram. So Vande Mataram becomes such a sacred thing than the Sanskrit shlokas. And in that way the politics entered into the mind of the people, that they understood कि now this will not happen. So Okay. that was the starting point when this Congress went into the hands of the extremists. ओके But again, when this happened, next year immediately the elite class of Muslim, at that time also, in this Congress also, even when we think about society, society was also not divided. Society was united. What today people are talking about Hindu and Muslim, Okay. it was not there. That was also a very bad policy used by the Britishers. ओके 1906, they started dividing us, we Indians, into the religion, on the name of the religion, Hindus and Muslims. And 1906, with their support, some of the elite class of Muslim started a new political party called as the Muslim League, ओके where common Muslim was not having any business in that, but it was Aga Khan, means the prince of the Dhaka, ओके the prince from the Mughal prince. So all these people were there, जिन्होंने मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं मेडिएवल में, तो 1000 से लेके 1857 तक जिन्होंने इंडिया पे राज्य किया था, इस टाइप के जो कुछ मुस्लिम नवाब थे, Okay. उनके डिसेंडेंट्स ने बोला कि वी वांट योर हेल्प, एंड दे एस्टैब्लिश वन पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग. ओके बहुत एफर्ट दिए गए कि उनको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लेके फ्रीडम स्ट्रगल में साथ में काम करें. अच्छा. बट रिजल्ट इज इन प्रेजेंट सिचुएशन, that how in 1947 India and Pakistan became the two states. So the starting of that was in 1906. वहाँ से वो शुरुआत हुई, जो बढ़ते बढ़ते आगे 1939 में सेपरेट डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान केम. Okay. And 1947 we saw that unfortunate division of Indian territory, Indian subcontinent into two countries, India and Pakistan. So basically it was like that. So ये था. गांधी जी तो अभी आने बाकी थे. ओके 1906 से लेके 1920 was the era of these moderates. अच्छा Means what we call it is the trident हाँ. of these extremists. Lokmanya Tilak, then Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. ओके इन लोगों ने इतना काम किया, they motivated the people, and then the Congress reached in at the grassroots level. तब तक तो कांग्रेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एजुकेटेड लोग कुछ गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं, यही लोगों के दिमाग में था. अच्छा. बट ये हमारी जिंदगी से संबंधित है. हाँ. ये उनके सामने तब गया जब इन तीनों ने और बाकी एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने एफर्ट किए. Okay. वंदे मातरम मूवमेंट वाज स्टार्टेड, हाँ हाँ एंड द थिंग्स वेंट अप टू दैट.
ओके फिर कभी तो फ्यूचर में 1905 1915 1915 में महात्मा गांधी, और एट दैट टाइम तो महात्मा गांधी वॉज नॉट महात्मा, राइट he was one Gujarati person was working in the South Africa for the rights of the Indians over there. ओके Gopal Krishna Gokhale was there, the political guru of Mahatma Gandhi. He invited him in India 1915, January 1915, and from there he started working with Indian National Congress. ओके 3 years he took to just roam the entire country, entire Indian territory, and then he started his Champaran Satyagraha, then Kheda Satyagraha, and then 1920, after the death of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, अच्छा he became famous, or he became the face of Congress. ओके So this was one side. At the same time, there were certain Vivo Vaishnavis Right. who were also working. Okay. In that, maybe the Savarkar was there. His political organization was there. Mitra Mega or Abhinav Bharat. ओके Then Baba Havdayar was there. He was functioning from the San Francisco, अच्छा. USA. USA से 1912 में he was working in the Gadar Party of India. राइट So there were people who were working in India, out of India, for the objective that they wanted to show the world that how Britishers are using the Indian resources, how they are Okay. exploiting India, Indian people for their own benefit. And now coming to like now the timeline is until 1920. So if we skip 10 years, 1930. So there was a movement in 1930 that we sought to seek independence. हमने ये कहा था कि ब्रिटिश हमको इंडिपेंडेंट करे या ना करे, बट हम तो इंडिपेंडेंस डे Yes, yes. मनाएंगे ही. सो फिर Yes, that is something demand of total independence. ओके सो उसके बारे में फिर थोड़ा Okay. तो इसी चीज़ को थोड़ा आगे लेके जाते हैं ना. हाँ हाँ तो 1920 में ये सब चीज़ें घट रही थी, और उसी में एक घटना घटती है कि इंडिया में थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल भी शुरू हो गया था. अच्छा देयर वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन द यूरोप. और उस वक्त क्या हो गया कि यूरोप में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, इट वाज बेसिकली बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन. ओके और उसमें इंडियंस को खींचने के लिए, खास करके इन इंडियन आर्म फोर्सेस में भी और इंडिया में भी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, हाँ हाँ उसका बेनिफिट कैसे उठाए, इसके लिए देयर वाज जर्मनी. तो Okay. व्हाट जर्मनी डिड, जर्मनी वाज द एनिमी ऑफ ब्रिटिशर्स. दे साइन अ ट्रीटी विद द तुर्की, एंड वी ऑल नो कि जो तुर्की का बादशाह होता था, हाँ हाँ कौडस खलीफा, उसको जनरली पूरी दुनिया में जितने इस्लाम के लोग हैं उनका हेड माना जाता है. ओके तो जर्मनी ने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया. उसके तहत तुर्की ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया, ओके एंड दैट खलीफा वॉज अरेस्टेड. इंडिया के अंदर आंदोलन होने लगे, एजिटेशंस होने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप खलीफा को छोड़ दो, ओके आपकी लड़ाई जर्मनी के साथ है उसके साथ करो, आप तुर्की के साथ कुछ नहीं करेंगे. एंड इंडिया में एक वातावरण थोड़ा खराब हो गया. उसी वक्त का वही समय था कि जब गांधी जी का सत्याग्रह चालू हो गए, और जब चीज़ें थोड़ी सी बदलने लगी तो ब्रिटिश केम विथ वन लॉ, जिसको जनरली लोगों ने नाम दिया था ब्लैक एक्ट. जिसके अंदर क्या हुआ था कि किसी को भी ब्रिटिशर्स अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे विदाउट टेकिंग टू द कोर्ट. जुडिशियल कस्टडी में नहीं डालेंगे, डायरेक्ट उसको पुलिस कस्टडी से सेंट्रल जेल में डाल सकते हैं. ओके सो दिस वॉज रेफर्ड एज द ब्लैक एक्ट बाय द इंडियंस. एंड इसके खिलाफ जब कुछ आंदोलन हो रहे थे तो पंजाब में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज जालियनवाला बाग. हाँ 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 वहाँ पे अ मैसेकर टुक प्लेस. जनरल डायर वॉज देयर हु एंटर्ड इन द बाग, एंड सो मेनी इंडियंस वर just he opened the fire on them. Okay. They died. So as a response of that, Indian National Congress started a movement called as non-cooperation movement. ओके And the roots of that 1930 is in 1920. When that movement was started, so many youngsters give up their schools. Some nationalist schools were started by Lokmanya Tilak. Even Baba Havdayar was there in Punjab. And in those schools they started working. People resigned from the government jobs. And a movement was started in India which continues for next 2-3 years. ओके up to 2022, 1922. जब कभी तो एक घटना घटी थी called as चौरी चौरा इंसिडेंट्स. अच्छा. One police station was burned by the these agitators, and then Gandhi ji said कि non-cooperation movement has to stop. अच्छा That was the biggest shock for all the Indians or the people who were behind him. But still it was continued. But because of that, there were certain youngsters, they started taking the revolutionary actions. ओके So examples means we are having only few examples which we know. That is Bhagat Singh, Sukhdev Rajguru is there. Right. Chandrasekhar Azad, and all they established an organization
Hindustan Republic Association. Later on, that was converted into Hindustan Socialist Republic Association, Okay. HSRA. They conducted certain activity. And 1930 तक क्या हुआ? 1925, they attack on a train. British treasure was that is called as Kakovi train conspiracy. Okay. They attacked on the train. वहाँ से ब्रिटिशर्स का खजाना लूटा, लोगों में बांटा गया. All of them were arrested. फिर भगत सिंह का नौजवान भारत सभा के उन्होंने काम करना शुरू किया. लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा था और जब लोगों ने ऐसा बहुत अपोज करना शुरू किया उसमें ही 1929 में ब्रिटिशर्स केम विथ पब्लिक सेफ्टी बिल टू अपोज इट. भगत सिंह ने संसद में ही थ्रोन अ बॉम्ब. Right. बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह, Okay. they gave their arrest and then a case was started. So from the British court they started talking about total independence. And that was the time when the youngsters got the leadership of Indian National Congress. Netaji Subhash Chandra Bose and Pandit Jawaharlal Nehru. Acha. They came together and fortunately in 1929 in the Lahore session of Indian National Congress, Pandit Nehru became the president of Congress. और अंदर जेल से या कोर्ट से भी आवाज आ रही थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए. अच्छा. दैट वाज द टाइम व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे यंगस्टर्स कांग्रेस की लीडरशिप में आ गए. उन्होंने भी कहा कि यस दैट इज द जनता की आवाज़, हमें वो सुननी पड़ेगी. एंड दे आल्सो सेड कि यस नाउ टोटल इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड. Okay. अभी हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आधा अधूरा गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडिपेंडेंस. ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, हमारे हाथ में सत्ता आएगी. Okay. और उसके लिए उन्होंने फिर उस लाहौर सेशन में कहा कि एक अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को कि 26 जनवरी 1930 Okay. इस दिन को आप हमें इंडिपेंडेंस देंगे तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी 1930 को हम हमारा स्वाधीनता दिवस मनाएंगे. अच्छा. हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा. हम उस दिन जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज होंगे वहाँ का यूनियन जैक नीचे निकालेंगे, वहाँ पे तिरंगा जो अपना इंडियन फ्लैग है, नॉट आज का, उस वक्त इंडियन फ्लैग पे बीच में कांग्रेस का फ्लैग हुआ करता था, बीच में चरखा हुआ करता था, तो वो फ्लैग वहाँ पे हम फहराएंगे एंड वी विल डिक्लेयर आवरसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट. Okay. एंड दैट हैपन 1930 26 जनवरी. स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों ने भी ऐसे किया कि देयर आर द एग्जाम्पल्स. महाराष्ट्र में देयर इज प्लेस नंदुरबार. नंदुरबार नाम का छोटा सा विलेज है. वहाँ पे शिरीष कुमार वॉज देयर जिसने अपनी शहादत दे दी. तो ऐसे बहुत से लोग थे कि जिन्होंने उस वक्त काम किया एंड लोगों ने टोटल इंडिपेंडेंस और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया. Okay. ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर कब्जा किया. फिर अभी कांग्रेस को भी कुछ लगा कि कुछ होना चाहिए एंड देन गांधी जी केम विथ अ न्यू मूवमेंट called as civil disobedience movement. अच्छा. That we will disobey certain rules of the Britishers, but not the criminal, civil. And then he came with that salt satyagraha, Sabarmati ashram to Dandi. There was Okay. a march. Dandi And march. that Dandi march was there, and that was also a very very strategic move made by him. कि he gave the message to Britishers कि yes, कि अगर आप नहीं जाएंगे तो we will break the law now. Now we Okay. will take the things in our hand. Right. And that worked like anything. Thereafter, then future things got changed. Then next year, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru got their shahadat. Right. They became martyrs. Okay. This was 26 January. Means at the starting also we spoke कि the Constitution of India was ready and Right. accepted on the date of 26 November 1949. हाँ. But still Britishers का जो caretaker था यहाँ पे, Lord Mountbatten, हाँ. we kept that person here for next 60 days. वो इसीलिए हमने उसको यहाँ पे रखा था because we wanted to give the recognition of this 26 January Okay. for the future generations. Right. And that's why the day was selected for implementing the constitution was 26 January 1950. Okay. 60 days we gave our country in the hand of some foreigner. So after 1930 फिर हमने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. फिर उसके बाद आई गेस कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ देन द ब्रिटिशर्स लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर 2. सो देयरफॉर उनका जो मनी था या फिर जो कुछ पावर था इन द वर्ल्ड वो डिस्ट्रॉयड हो गया. Yes. सो देन आर लीडर्स गॉट पम्प्ड बैक अगेन एंड उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया कि अभी तो कंपलसरी हमको इंडिपेंडेंस चाहिए. Yes. राइट. सो फिर उस केस में हम इंडिपेंडेंट तो 1947 को हो गए 15 अगस्त. बट फिर रिपब्लिक जब हम जैसे आपने बताया कि रिपब्लिक वी गॉट ऑन 26 जन 1950. तो फिर वो जो बीच का टाइम था तब हमने क्या किया?
बेसिकली ऐसे हुआ ना 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयर, उसके बाद में भी ब्रिटिशर्स वर आल्सो टेकिंग द एफर्ट्स। ओके। मतलब थोड़ा सा ऐसा है ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने के पहले हाँ हाँ भी ब्रिटिशर्स ने कुछ एफर्ट्स लिए थे। 1927 में ब्रिटिशर्स को भी समझ में आने लगा था कि अभी इंडिया में राज्य करना मुश्किल है, इनको हमें इंडिपेंडेंस देना ही पड़ेगा। Okay. बट इट इज़ लाइक दैट ना कि इतनी बड़ी सोने की चिड़िया आपके हाथ में है, हाँ। तो पूरी की पूरी देने से अच्छा ऐसा एक काम करते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा किश्तों में देंगे। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने 1927 दे सेंट साइमन कमीशन इन इंडिया। Okay. साइमन कमीशन केम हियर, उन्होंने कुछ एफर्ट्स लिए थे इसके लिए कि इंडियंस लीडर को मिलेंगे और पूछेंगे आपको कैसा गवर्नमेंट चाहिए, आप बताओ, गवर्नमेंट आप चलाओ, अल्टीमेट डिसीजन हम देंगे। ओके। So that Simon Commission came, but there was no Indian representation in that. So that was the moment when we lost our one of the extremist leader, Baba Lajpat Rai, Okay. when he was doing the agitations against the Simon Commission. In entire India, people were welcoming them with the black flags, black roses, and they were shouting the slogans, "Simon, go back, Simon, wapas jao." And in that, they come to know, but still they took certain efforts. नेक्स्ट ईयर मोतीलाल नेहरू वॉज देयर, फादर ऑफ पंडित नेहरू। उनके अंडर सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ने इकट्ठा होकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा, जिसको नेहरू रिपोर्ट नाम दे दिया। इट वाज द रिपोर्ट वाज नेम बाय हिज ओन सरनेम, नेहरू रिपोर्ट। सो वो बना, उसको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्फ्रेंस की थी कॉल्ड एज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके। That round table conference was there in the London 1930, 1931, 1932. 3 years they took the efforts for that conference, and in that conference also they wanted to decide ki which type of government we should give to Indians. So they don't wanted to leave India also, but they don't want, even at the same time they don't wanted to keep us on the same situation, because उनको पता था ऐसे ही रखेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ओके। तो थोड़ा सा कुछ देंगे भी फ्रीडम, और मेन चीज अपने हाथ में भी रखेंगे। राइट। ऐसा करके दे केम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में उन्होंने एक कायदा लेके आए, उसमें इंडियंस को थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया था। बीच के समय पे, मतलब जैसे ही कांग्रेस बन गई ना, उसके बाद में बहुत बार ऐसे हुआ था कि वाइसरॉय जब काम करता था तो उसको मदद करने के लिए पहले 5 इंडियंस, बाद में 15 इंडियंस, Okay. ऐसे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स को वो अपने साथ लेते थे। बट दैट वाज ओनली फॉर द नेम सेक, या उनका हर चीज़ सुनेंगे ही ऐसा नहीं था। अच्छा। बट 1935 के बाद में, या रादर 1919 के बाद में, उसके ऊपर काम होने लगा। लोगों ने वोटिंग करना शुरू किया। भले उस वक्त हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओके। बट 1935 में देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम, उसके तहत काम होने लगा। और 1939 आ गया, जब उस वक्त जो वाइस लीडर्स थे, वन ऑफ देम वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके। तो नेताजी बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया and he went to, first of all, Germany. There he met Hitler, and he started gathering the prisoner of war of the Second World War, जो इंडियंस थे, उनको इकट्ठा करके वन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म, जो हमें सबको पता है, आज़ाद हिंद फौज। राइट। और जिसके बारे में तो जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो उसको नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा। उन्होंने उस वक्त जो काम किया था जापान में, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट इंडियाज गवर्नमेंट बाय जापान। जापान ने भी उसको उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कंसिडर किया था। ही वॉज गिवन ऑल द सपोर्ट एंड हेल्प, और उसके तहत उन्होंने काम करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई की। Okay. तो इट वॉज नाउ, ऐसा नहीं था कि कुछ हो नहीं रहा था। Okay. बाहर से कुछ लोग काम कर रहे थे, अंदर से भी कुछ लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, बट थोड़ा सा अंडर द रडार टाइप का काम चालू था। और ऐसा करते करते जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय आया 1942, राइट। 1942 में वापस ऐसे होने लगा कि ब्रिटिशर्स बिकेम वीक। एंड ये हमारी धारणा है, हमारी भावना ऐसी है कि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे। ओके। वो बहुत पावरफुल नहीं थे, बट उनका अपने देश के लिए, अपने पार्लियामेंट के लिए जो डेडिकेशन था वो बहुत स्ट्रांग था, Okay. जिसने उसको बांध के रखा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी दे वर डिपेंड ऑन इंडियन आर्मी टू सपोर्ट। मतलब यू विल गेट सरप्राइज, बट उस वक्त का जो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिलता था, आज मिलता है परमवीर चक्र, राइट। उस वक्त मिलता था विक्टोरिया क्रॉस, जो किसी ब्रिटिशर्स को नहीं मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला विक्टोरिया क्रॉस वाज ओन्ड बाय अ इंडियन। देयर वाज वन मुस्लिम सोल्जर, खुदादत्त खान। नाइस। सो खुदादत्त खान गॉट द फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस, जो विक्टोरिया के नाम से था, जो किसी ब्रिटिश को नहीं मिला, इंडियन को मिला। सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट वाज द लेफ्टिनेंट PS भगत, जो बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। अच्छा। ही वाज द वन जिनको पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था। मतलब जो ब्रेवरी थी वो अपनी थी, पराक्रम था वो हमारा था,
हमने काम किया था, बट दे वर द विक्टोरियस। Right. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो अपनी मदद मांग रहे थे, और उन्होंने उस वक्त एक क्रिप्स मिशन भेजा था इंडिया में, हाँ, हाँ। जिन्होंने कहा कि आज हमारी मदद करो। मतलब ये मैं बहुत सादी भाषा में बता रहा हूँ, बट मीनिंग यही था। उन्होंने ऐसा Okay. कहा था कि आज आप हमारी मदद करो लड़ाई में, हम फ्यूचर में आपको, हम जीतने के बाद आपको इंडिपेंडेंट देंगे। तो गांधी जी कॉल दैट क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। ओके, कि आपकी बैंक आज 5 साल के बाद रहेंगी कि नहीं आपको पता नहीं है, Right. और आप मुझे 6 साल के बाद का चेक देते हो कि वो चेक ले लो और उसके बदले में मुझे आज कोई चीज़ दो। तो तब गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था, जनवरी विच इज कॉल्ड एज द अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति दिवस एवरी ईयर ऑन 8th of August वी सेलिब्रेट दैट। ओके, और वो भी मुंबई से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र। मुंबई से उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। ओके, तो दैट वाज डन, एंड फिर उन्होंने बोला था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो चले जाओ जो था, ब्रिटिशर्स चले जाओ। राइट, राइट, दैट मूवमेंट वाज स्टार्टेड, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो कुछ हो नहीं रहा था ऐसा नहीं था, चीज़ें हो रही थी, बट कभी कभी उनका जो पेस था वो थोड़ा कम हो गया, ओके, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, तो ऐसा होते होते 1945 आया, दे वर डिफीटेड, एंड दुनिया में एक मिराकल हो गया था कि 1945 ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, और डिफीट होने, सॉरी, ब्रिटिशर्स वॉन द वॉर, जर्मन्स वर डिफीटेड, ब्रिटिश वॉन द वॉर। और वो जीतने के बाद में ऐसे हुआ कि देयर वॉज अ जनरल इलेक्शन। उस जनरल इलेक्शन में देयर वॉज विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने विक्ट्री दिया था। ही अगेन कंटेस्ट द इलेक्शन, एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट द इलेक्शन। Okay. और उसके अगेंस्ट में जो लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन थी, रीडर वॉज एटवी। तो मिस्टर एटवी वॉन द इलेक्शन एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का एजेंडा था कि इफ वी विल गेट इलेक्टेड, हम दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज है, वी विल गिव देम इंडिपेंडेंस एंड वी विल फोकस ऑन आवर ओन कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, And then when they came in the power, then in British Parliament में there was a series of rules, series of bills passed in the British Parliament. अच्छा, उसमें से एंड में जो हुआ था that was लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, और उन्होंने एक कायदा लेके आए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ओके, under which India got independence. But again, I will again say it was unfortunate that we got divided into two parts, India Right. and Pakistan. राइट, So we got divided and we got independence. But this independence doesn't came like that only. Along with this independence, we got the responsibility of making our own constitution. राइट, हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनानी थी, क्योंकि वी वांट टू शो द वर्ल्ड कि अभी हमारे हाथ में पावर आने के बाद हम किस तरह से काम करेंगे। हाँ, हाँ, और वो काम करने का जो तरीका था, द मेथड वॉज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर दैट अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, Right. वी शुड नॉट फॉरगेट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यस, सो ये सब लोगों ने जो एफर्ट्स लिए, ओके, एंड आफ्टर दोज मीन्स व्हाट वी कैन से फंटास्टिक एफर्ट्स, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फॉर द वर्ल्ड इट वॉज फैंटेसी, बट दे ब्रॉट द थिंग्स। उन्होंने 2 साल 11 months, 2 year 11 months, they worked together. There Okay. was a deliberate discussions. हाँ, हाँ, They fight against each other by words, ओके, because it was the war of the principles, concepts, ओके, and they made this beautiful document of the Indian Constitution, which was implemented from 26 January. राइट, So there is a importance of that. When we call about Indian Constitution, भारत का संविधान, that is India. Ultimately, what is India? India is that sovereignty. हमारा एक sovereignty है कि हमारे देश में हमारे तरीके से हम whatever we want to do, we can do. राइट, And that authority came through the Constitution. ओके, तो वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो एफर्ट्स लेने पड़े, हाँ, 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 एंड उसका सब जो सक्सेस था, वो सक्सेस मनाने का जो दिन है, दैट इज 26 जनवरी। ओके, ओके, ओके। सो अभी एक स्मॉल सिनॉप्सिस अगर मैंने दिया, सो लाइक 1947 में 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हो गए, और फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिया। देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज हेडिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। सो फिर उन्होंने वो हेड करके सारे एस्पेक्ट्स कवर करने के बाद, आई गेस टू बी प्रिसाइज 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 दिन, यस, इतने दिनों के बाद इट वाज लाइक 26 नवंबर 1949, यस, और फिर हमने और 2 महीना भी वेट किया शायद। सो दैट वाज द पॉइंट कि हमने 60 दिन वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ये दिया था। ब्रिटिशर्स मीन्स लॉर्ड माउंटबेटन वाज देयर, ओके, हु वाज एज अ ऑब्जर्वर इन इंडिया। हाँ, हाँ, our government was doing certain things, but अच्छा, everything we have to fall back to him. ओके, उसके पास जाना पड़ता था या उसको दिखाना पड़ रहा था हमें।
वो 2 महीने के लिए। यस 2 महीने And मतलब वो 2 महीने के लिए नहीं 15 अगस्त से लेके उस दिन तक कंटिन्यूअसली माउंट बैटन वॉज हियर। लेकिन वो ऐसा होता है ना कि अभी हमारा बन गया तो आप चले जाओ, अच्छा बट फिर भी हमने 60 डेज वेट किया जस्ट टू हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट 26 जनवरी 1930। ओके दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली। अच्छा एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। बट फिर अपना सबसे पहला इलेक्शन तो 1952 में हुआ, राइट? 1951 1951 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन। सो फिर 1947 से लेके 1951 तक, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो लेट चालू किया, बट 1947 15 अगस्त के बाद हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तभी जनरल इलेक्शन रख के वी इलेक्टेड अ प्राइम मिनिस्टर और समथिंग एंड देन उसके रूल के नीचे हमने तब तक ही बेसिकली ना फॉर दैट मीन्स व्हेन टुडे वी लुक एट दैट, तो ऐसा समझ में आता है ना कि ये सब चीज़ों को चलाने के लिए अ मैकेनिज्म हैज़ टू बी देयर। हाँ जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने छोड़ा ओके तो देयर वाज लॉट ऑफ मीन्स देयर वाज सर्टेन chaos also. We were not having all the systems at the place, but still that first government which was working, जो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था ओके उसके हिसाब से थोड़ा बहुत काम उस सिस्टम से हम काम कर रहे थे। हाँ। देयर वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, देयर वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर, देयर वॉज अ होम मिनिस्टर, और ये सब लोग मिलके कुछ ना कुछ, दैट इज जनरली कॉल्ड एज इंटरिम गवर्नमेंट। ओके और बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज इंटरिम गवर्नमेंट एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग द प्रेसिडेंट ऑल्सो, एट दैट टाइम वी वर हैविंग गवर्नर जनरल। The first governor general of independent India was C. Rajagopalachari. Right. So he was there. We were having a mechanism, but that was the mechanism given by Britishers previously. अच्छा So we were interested to have our own constitution, and the beauty of our constitution, or success of our constitution, just see, we got independence on 15th of August 1947. ओके 14th of August Pakistan got independence. राइट So they are senior to us by one day. ओके We can say हाँ, हाँ. they are senior to us by one day, but still if we look at the Indian democracy's development हाँ, हाँ. and the democracy in Pakistan, so how do you now, this can also be seem like a joke that there is a democracy in the Pakistan. राइट So many incidences took place when there was a military government, military junta. Pervez Musharraf we saw, we heard about the father of Benazir Bhutto, or Yahya Khan was there. राइट So many military generals came there. There is no democratic system. In India, we don't have this kind of system. And that credit has to given to the Constituent Assembly. ओके पंडित नेहरू से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑल दोज. राइट तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो इस तरह से था और गवर्नमेंट था, बट उनके तरीके से ही गवर्नमेंट चलाना था. तो देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट. ओके तो हमारा गवर्नमेंट इट इज़ आर, वो जो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से कहा गया है कि इट इज़ आवर गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया, तो वो जो समझ में आना चाहिए ना हमारा है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस है. ओके सो फिर वो 4 साल हमने ये स्टडी किया कि उनका मैकेनिज्म क्या था और हम कैसे डिफर कर सकते हैं उनसे, हाउ कैन वी मेक इट इवन बेटर एंड देन अप्लाई इट टू. हाँ, वादव ऐसा कह सकते हैं. ओके एंड नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमने बहुत बार सुना है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो. बेसिकली अगर किसी को देखना भी है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हाँ हाँ तो जिनके घरों में छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, ओके उनका जो स्टेट बोर्ड का किताब होता है, हाँ, हाँ. किताब खोल के पहला पन्ना निकालेंगे तो वहाँ पे हमें दिखता है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट ठीक है, जिसको जनरली उद्देशिका ऑफ द संविधान कहते हैं, हाँ हाँ कि जिसमें द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन देयर ऑब्जेक्टिव. उनकी आइडिया क्या थी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त, ओके जिसमें उन्होंने जो कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने मतलब देयर वॉज लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर देम. कॉन्स्टिट्यूएंट या थोड़ा सा वापस उसको पीछे देखते हैं ना, तो प्रीएम्बल क्या है, कोई भी किताब जब हम लेते हैं, Okay. या इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमने घर में रेफ्रिजरेटर लिया, हाँ फ़ोन लिया, या हमने टीवी लिया, तो Okay. उसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है, राइट हाउ टू यूज़ दैट. तो उसी हिसाब से जब हम हमारे संविधान की बात करते हैं, तो उस संविधान में कौन सी चीज़ क्यों है, वो संविधान क्यों बना था, और Okay. बनाने के वक्त बनाने वालों ने क्या सोच के बनाया था, हाँ हाँ उनकी मतलब दे हैव गिवन देयर एंटायर फीलिंग्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, ओके उद्देशिका, कि हमें ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, और उसमें उन्होंने दिया एंड फर्स्ट सेंटेंस दे आर यूजिंग मीन्स दे आर सच अ सेल्फलेस पीपल, निस्वार्थ जो बोलते हैं ना, द बेस्ट एग्जांपल, दे वुड हैव राइट कि वी द पीपल, वी द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या आई द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, हाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वुड हैव डू दैट, उन्होंने ऐसा लिख सकते थे, ओके बट उन्होंने वैसा नहीं लिखा. व्हाट वर्ड दे सिलेक्टेड, द वर्ड्स वर वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके कि हम भारत के लोग, मतलब वो उस दिन भी था, आज भी है, आज के 1000 साल के बाद में भी होगा. Right. द वन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ देम दे आर टॉकिंग कि वी द पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर वी आर सोवरिन कंट्री, एंड ऑल दोज थिंग्स दे मेंशन इन दैट. ओके तो दैट डॉक्यूमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रीएम्बल, और आज भी ऐसे होता है. जब भी कभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करता है गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट तो उसके लिए जब भी कोई कायदा लेके आते हैं, और अगर ऐसे कभी दिखता है कि दो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कोई ओवरलैप है, कोई प्रॉब्लम है, ओके तो ऐसा माना जाता है कि यू हैव टू यूज द प्रीएम्बल. मतलब प्रीएम्बल इज लाइक अ टॉर्च, ओके जब अंधेरा पड़ेगा तो आप रोशनी डालने का काम, लाइट डालने का काम वो करता है. राइट वैसे ही है कि जहाँ पे देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, हाँ, तो आप प्रीएम्बल को देखो, प्रीएम्बल क्या कहती है वो देखो, उस हिसाब से आप काम करो. ओके तो इस तरह से वो एक डॉक्यूमेंट है जो विच इज द गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शोइंग द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. अभी ये सब जो हिस्ट्री हमने इंडिया की देखी, इसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ कश्मीर? लाइक कश्मीर तो पहले इंडिया का पार्ट था, फिर नहीं था, मतलब वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो फिर उस पर थोड़ा लाइट स्प्रेड करो. ये थोड़ा सा भी मतलब नॉट सेंसिटिव, बट थोड़ा समझने के लिए वापस पास्ट में जाना पड़ेगा. जो थोड़े देर पहले मैंने ऐसे बताया था कि जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी, हमारे अंदर वो नोशन ऐसी है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया को कंट्रोल किया था. ऐसा था नहीं. हाँ हाँ ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो पोर्शन कैप्चर किया था, वहाँ पे उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की, जिनको प्रेसिडेंसीज बोलते थे. राइट जैसे सेंट्रल प्रेसिडेंसी, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज देयर, मद्रास प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट का सिस्टम चलता था. राइट बट ये गवर्नमेंट चलता है, या गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट होता है जो कायदा बनाता है और कायदे को इम्प्लीमेंट करता है. राइट तो उस समय पे कुछ ऐसे लोग भी इंडिया में थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं किया था हर पैमाने पे, बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखे थे. दे वर कॉल्ड एज द प्रिंसली स्टेट्स, ओके जो किसी प्रिंस से चलाए जाते थे, क्योंकि हमारा राजा था ब्रिटिश एम्पायर. तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम करने वाले जो यहाँ के किंग्स थे, दे वर नोन एज द प्रिंस. और ये जो प्रिंसेस थे, उनके जो राज्य थे कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स. Right. ऐसे 600 राज्य थे, 600. वो कुछ एकदम छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे. एंड ये जो सब राज्य थे, इनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट वाज जम्मू एंड कश्मीर. एक दूसरा था हैदराबाद, एंड वन मोर वाज देयर जूनागढ़. ओके तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिलना डिसाइडेड हो गया, टू नेशन थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, तो इन सब प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि आप एक तो इंडिया के साथ जा सकते हो, या पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, या इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो. ओके उसमें जम्मू एंड कश्मीर वाज देयर, जिसमें नाउ देयर कैन बी अनदर टॉपिक, बट देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन. हाँ हाँ उसमें दो लीडरशिप थी. जो किंग की लीडरशिप थी वो बोलती थी कि वी वांट टू कम इन इंडिया. महाराजा हरि सिंह वाज देयर, हाँ हाँ बीइंग अ हिंदू और बीइंग अ डोगरा, ही वाज डोगरा पंजाबी. ओके So he wanted to come in India, and at that time there was one local political leader of Jammu and Kashmir, खास करके कश्मीर वैली, शेख अब्दुल्ला. मीन्स दिस शेख अब्दुल्ला, उनका अगर फैमिली हिस्ट्री देखते हैं तो शेख अब्दुल्ला, उनका बेटा था फारूक अब्दुल्ला, एंड फारूक अब्दुल्ला सन इज द उमर अब्दुल्ला, Okay. who is in the present day politics of Jammu and Kashmir. And Farooq Abdullah was the chief minister of Jammu Kashmir 90s में. राइट तो दैट फैमिली. सो ये शेख अब्दुल्ला वाज देयर, ही वाज द पॉलिटिकल लीडर हैविंग द पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस. इनिशियली इट वाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको बना दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस. अच्छा तो उनका कहना था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है. ओके तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स वर रिस्पेक्टिंग द डेमोक्रेसी. राइट तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमें उसको नहीं लेना है कश्मीर को, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमको लेना है. एंड मतलब आई एम डेलिबरेटली यूजिंग द वर्ड कुछ लोग, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट अनदर टॉपिक फ्रॉम हियर. ओके तो देयर वाज अ डिस्प्यूट, टू ओपिनियंस, कि कश्मीर को हमारे साथ लाना है कि नहीं लाना है. हाँ बट उस सब कन्फ्यूजन में पाकिस्तान गॉट द अपॉर्चुनिटी. ऑन 20th October 1947 दे अटैक्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर.
Okay. then Maharaja Hari Singh and Sheikh Abdullah. Now both became of the same opinion कि अभी अगर हमें बचना है तो इंडिया के साथ जाना पड़ेगा. Okay. So that may be fortune, but हम fortunately शायद ऐसे हुआ और both of them agreed. हमने जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ लिया and now that became the integral part of India. Right. तो हमारा भाग बनने के बाद it was our responsibility to save them. Indian army वहाँ पे गई. If I am not wrong, at that time first Sikh regiment was there. Okay. सिख रेजिमेंट का पहला बटालियन था जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में उतरा और इट वॉज अ एयरबोर्न ऑपरेशन. हवाई जहाज से दिल्ली से लोग गए, पैराशूट से उतर गए, उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया एंड वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई एंड वी स्टार्टेड विनिंग. बट नाउ दैट अनफॉर्चुनेट कम कि एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द मीन्स देयर आर वेरियस ओपिनियंस of the people, but my personal opinion is that because of Pandit Nehru listened the advice given by Lord Mountbatten. Okay. जब हम जीत रहे थे ऐसे समय पे वी वेंट इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने केस डाली एंड द केस इज नॉट रिजॉल्व टिल डेट. अच्छा. तब उस समय पे उन्होंने ऑर्डर दिया टू हैव द सीज फायर, लड़ाई बंद कर दो. और सीज फायर जनवरी कहा जाता है कि लड़ाई बंद हो गई और वहाँ पे एक लाइन खींची गई जिसको उस वक्त उन्होंने नाम दिया था सीज फायर लाइन. Okay. CFL. और वो CFL पे फिर लड़ाई खत्म हो गई बट इट वॉज वेरी जिगजैग इन द नेचर. फिर वही जो सीज फायर लाइन थी 1971 में जब वापस लड़ाई हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर Right. एंड उस वक्त हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की. नाउ वो तो वी आर इन दैट टाइम व्हेन पीपल आर लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट सैम मानेकशॉ Right. थैंक्स टू बॉलीवुड. तो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर. तो अबाउट सैम मानेकशॉ बहुत डिस्कशन हो गया है. ही वॉज द हीरो ऑफ दैट वॉर. Right. उन्होंने दुनिया में एक वर्ल्ड मैप पे चेंज ला दिया. मतलब मैं तो हमेशा हंसते हुए ऐसे कहता हूँ कि दैट वाज सच अ इंसिडेंस कि हमने दुनिया भर में जितने वर्ल्ड मैप थे सबको पुराना मैप फेंक के नया मैप खरीदना पड़ा क्योंकि एक नया देश आ गया था इस पाकिस्तान की जगह पे बांग्लादेश. तो एक नया देश भी आ गया और उसके बाद में हमारे पास चांस था टू कन्वर्ट दैट CFL इनटू IB या वापस PO के वापस लेने का. बट it was converted into AOC and presently we are just fighting near about the AOC line of control. Okay. उसके ऊपर भी बॉलीवुड ने कुछ मूवीज बनाई थी. Okay. एंड ऐसा है तो दैट इज एक्चुअली कश्मीर. उस वक्त कश्मीर को हमारे साथ आना भी था, एक लीडरशिप को नहीं भी आना था और हमारा ओपिनियन फिक्स नहीं हो रहा था लेना है कि नहीं लेना है. अगर हम 47 अगस्त में ही लेते तो शायद पाकिस्तान वुड नॉट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू अटैक ऑन इंडिया. और आज जैसे सिचुएशन है आधा कश्मीर इज इट पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर. सो वो नहीं होता. एज सच इन हिस्ट्री देयर आर नो इफ्स एंड एव्स. ऐसा नहीं होता है वहाँ पे. जो हो गया एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड. नाउ टू कंक्लूड द टॉपिक, सो फिर जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो उस टाइम पे सेलिब्रेट हुआ था और जो आज हम सेलिब्रेट करते हैं, आज तो फिर लाइक वी कैन से आधे लोग तो छुट्टी मनाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई बाहर घूमने निकल जाता है. सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बेसिकली एज यू नो कि आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं मतलब ये तो है पहले भी जो हो. मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा आज का और कल का, मैं तो ऐसे कहूँगा आज बीच का एक समय एंड उसके पहले का समय. Okay. तो शुरुआत में तो डेफिनेटली देयर माइट बी दैट जिस्ट की कुछ किया है हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए था. Right. बट जैसे टाइम आगे जाता है चीज़ें लोग भूलने लगते हैं. तो बीच में एक समय ऐसा था कि लोगों ने छुट्टी के लिए एंड थैंक्स टू वेरियस मॉरल कल्चर ऑफ आवर कंट्री people are giving 50%, 40%, 70% discounts. And we are just using these opportunities कि 3 दिन सबसे सस्ते है ना. So I am not canvassing any more, but it is the general tendency. Even the kids in home they call us कि there is a छुट्टी तो हम जाएंगे क्या मॉल में. They are asking like this. तो वो ऐसा सिचुएशन था. But now again we are in that era कि जब people are talking about the patriotism, armed forces, and now तो we are in the आत्मनिर्भर भारत. तो बीच में ऐसा भी एक समय था कि जब 26 जनवरी को we were still in the era of Rajpath, but now we enter into Kartavya Path. Okay. So I hope this Kartavya Path and all the things which are happening will definitely bring that motivational things of patriotism back. Right. But ये तो है ही कि this day is there कि जिस दिन हमने उनकी शहादत को याद करना चाहिए. भले किसी ने खून बहाया था, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए
पेपर के बंचेस पे काम किया होगा, लिखा होगा, यस तोड़ के फेंका होगा, वापस नया लिखा होगा. तो इन सब लोगों को सैल्यूट करने का दिन आज का दिन है. ऐसा ही हमने सोचना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज द ग्रेटफुलनेस, वो हमने आज दिखाना चाहिए. तो वही एक मैसेज होना चाहिए कि वी विल टेक द डिस्काउंट्स ऑल्सो, वी विल डू ऑल दिस पिकनिक्स, बट एटलीस्ट 5 मिनट 1 घंटा हम वो करना चाहिए. राइट. एंड जहाँ पे नेशनल एंथम सुनाई दे, तो वी हैव टू स्टे बैक, स्टे काम, एट अटेंशन. ऐसा एक मैसेज देंगे. एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो दैट यू ब्रॉट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. यस सर. ये भी इट इज़ द डेयरिंग वाला चीज़ है. आई हैव जस्ट लास्ट क्वेश्चन. कोई बुक का रिकमेंडेशन है क्या जहाँ पर लोग पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर बिट्स एंड पार्ट्स जहाँ पर वो कर. ओके. व्हेन इट कम्स टू बुक्स, Okay. एक एखादा किताब, मतलब द क्वेश्चन यू आर आस्किंग इज सच अ डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट गिव अ सिंपल वन वर्ड. Okay, so number of books which can be connected, reconnected. ऐसा There कुछ. are certain books which we can, means nowadays there is one author, there are certain books about Indian history, the Land of Seven Sisters, Okay. and certain books are there. Then even in the meantime, if you want the academic kind of books, there are certain books which will not give you fantasy, but give the clear idea. There are certain books like Modern History of India is there. Then rather I will say one can go with the biographies. There are so Okay. many biographies of Netaji Subhash Chandra Bose, even Dr. Babasaheb Ambedkar, Right. Pandit Jawaharlal Nehru. There are so many books available which we can read. Because generally when it comes to the history of India, हाँ हाँ. the history of India is written with some another objective. Okay. And nowadays it is the war of the narratives. So I would not like to refer any particular section book. There is Okay. a lot of going on, right wing, left wing. Yes. So I don't want to get trapped into that. But still we can go to the biographies, because that is something जो हमें थोड़ा सा ना खेल खेल में इतिहास सिखाएगा. Yes. किताब लेके बैठेंगे तो हमने हमेशा स्कूल में वही देखा है, बड़े मूछों वाला टीचर पढ़ाता है और उसमें किसी को इंटरेस्ट आता नहीं है. Right. इसके लिए बायोग्राफीज लेके जा सकते हैं. Yes. So thank you sir for your time and making you this very one of the most informative podcast that I have done.